Hey, good morning, guys. I am Amin Solanki of BCom first year, and today we are going to learn about the business organization communication, the subject of BCom honors first year. So first we will learn that what the business organization, the introduction of business organization communication. So let us start. We know that all the human activities that are grouped in two kind of things. What are that? Economic activities and non-economic activities. Now, what is the economic activities? So, economic activities are those activities which are undertaken to making money. What? Which are undertaken for making money. This is what economic activities, such as salary, payment, fees, or wages. This overall other and business is the type of what economic activities. Then the next one is what non-economic activities. Non-economic activities are those activities which are undertaken not for earning money, मीन्स फॉर ह्यूमैनिटी पेट्रोटिज्म और काइंड हार्टेड, मतलब अपन जो NGOs वगैरह करते हैं जो उसके लिए अपन कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जिसमें अपना मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है. Then we know that the economic activities are also known as what? Occupation. Yeah, are also known as occupation. So there are three main type of what? Economic activities. First one is the profession, then second one is the employment, and third one is the what is the profession? So profession is occupation which involves the rendering of personal services of specialized nature. Personal services of specialized nature. What does it mean of personal services? Means specialized nature means if a doctor, engineer, and lawyer are doing some work or some other things, so this is called as what? Profession, because they are getting the payment or fees for that. So this is an economic activities because they are earning from that. Then the next one is what? Employment. And employment is an occupation in which a person undertakes to work for another according to the terms of their services and agreements. Means जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे के अंडर में वर्क करता है और वो उसके बदले क्या लेता है? वेजेस, सैलरी लेता है वो, और वो भी उनका भी मोटिव अर्निंग मनी है. सो इसलिए वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है. देन थर्ड वन इज द बिजनेस. सो बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन इन विच ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अंडरटेकन विद व्यू ऑफ अर्न प्रॉफिट. मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का बेचना है, खरीदना, या उसका प्रोडक्शन प्रोसेस, वो क्या इस किस में होता है? बिजनेस में. और अपना मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव होता है प्रॉफिट. क्या होता है? मेन मोटिव प्रॉफिट होता है. सो इसलिए वो बिजनेस को अपन क्या कहलाते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती है. अब बात करते हैं हम नेचर ऑफ बिजनेस की. अब बिजनेस का नेचर जो होता है वो कैसा होना चाहिए या कैसा होता है. सो वैसे जो बिजनेस है वो टर्म कहाँ से लिया गया है? जो इंग्लिश का वर्ड है बिजनेस, वहाँ से लिया गया है. उसका मतलब ही यही होता है कि बिजनेस. प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है बिजनेस का. ये प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटी है. बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कंसर्न विद अर्निंग मनी एंड इकोनॉमिक. जो बिजनेस होता है वो क्या होता है कि वो उसका मेन मोटिव अर्निंग प्रॉफिट होता है, अर्निंग मनी होता है, इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है. देन दिस विल ऑल द थिंग्स. Then if you talk about any definition of, so I like that definition according to the Hani. What does Hani said? That business may be defined as human activity directed towards producing or acquiring wealth or buying and selling of goods. What does it mean? It means that business can be defined as human activity. Yeah, it can be classified as human activity towards what? Producing of goods and services or buying and selling of goods and services. Means या तो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना, मतलब उनको बनाना, या तो उनका सेलिंग करना, बाइंग करना, खरीदना या सेल करना, वो क्या होता है? वो प्रोडक्शन होता है, मतलब वो बिजनेस होता है. वो बिजनेस होता है. सो ये डेफिनेशन है बिजनेस की. अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस की. सो देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस. मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस.
So we will discuss this. First one is dealing in goods and services, means गुड्स और सर्विसेज के साथ में डील करना. मतलब मैं बता चुका हूँ आपको कि गुड्स और सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज ऑल्सो एन बिजनेस. मोर एंड मोर कंजप्शन ऑफ बिजनेस, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज एन एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन. जैसे कि अगर एक दूध वाला है, अगर वो जो मिल्क मैन है, अगर वो मिल्क मैन अपने को अपन उससे दूध कंजप्शन कर रहे हैं, अपन ले रहे हैं उससे दूध, और अपन उसको अर्निंग मनी. जो डेयरी वाला है उसका मैन मोटिव भी अर्निंग मनी है. सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, बिजनेस. या अपन कंज्यूमर गुड्स जैसे खाने पीने की चीज़ ही हो, या राइस, वेजिटेबल, शूज़, क्लॉथ्स, etc. या अपन बोल सकते हैं मशीनरी, टूल्स, रॉ मटेरियल्स, etc. कुछ भी, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब हर चीज़ कहीं में आ सकती है, बिजनेस में आ सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ये भी एक तरह का बिजनेस होता है. फाइनेंस, इंश्योरेंस, जो फाइनेंस की कंपनी है वो भी बिजनेस ही कर रही है एक तरह से. वो भी अपने से पेमेंट लेती है, पेमेंट देती है अपने को, और वो उसका प्रॉफिट मोटिव कर लेती है. ट्रांसपोर्टेशन जैसे प्राइवेट बसेस वगैरह हैं, जो चार्टेड की बसें चलती है या दूसरी कंपनियों की बस चलती है, प्राइवेट बसेस चलती है, तो वो भी मैन मोटिव क्या है उनका, बिजनेस, प्रॉफिट अर्निंग. मैन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग. देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट, एक्सचेंज, सेल और ट्रांसफ़र. मीन्स एक्सचेंज करना या तो एक्सचेंज करना. ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ हैव वन थिंग, या सभी को मतलब एक कॉमन चीज़ होती है उनके अंदर, क्या कि वो एंगेज दी सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब जो बिजनेसमैन होता है या तो वो सेलिंग में इंटरेस्ट रहता है, मतलब वो सेलिंग की एक्टिविटी में एंगेज रहता है, मतलब वो एक्टिविटी करता है, या तो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है, बाय करता है. वो क्या, वैल्यू प्राइस में, जो प्राइस वैल्यूबल है उसमें प्राइस में वो करता है. और ये कंजप्शन, एक्स्ट्रा पेमेंट, मतलब वो पेमेंट एक्स्ट्रा कुछ देता है. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जो अपना बिजनेसमैन है, मीन्स जिसके पास कंपनी है, एक कंपनी अगर कुछ बना रही है, जैसे वॉचेस बना रही है, और वो वॉचेस अगर होलसेलर को सेल कर रही है, तो वो होलसेलर उनको कुछ प्रॉफिट देगा थोड़ा बहुत. फिर होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर एजेंट को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है या जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स को देता है, उनको क्या करेगा, वो उनको देगा, तो वो उनको प्रॉफिट, वो उनको देंगे, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाती है. एक्सचेंज, सेल और ट्रांसफ़र हो सकता है. द रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी ऑफ डीलिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, बिजनेस. हाउ, क्योंकि बिजनेस जो एक्टिविटीज़ होती है वो क्या होता चाहिए कि रेगुलर होना चाहिए, डेली होना चाहिए, मे बी नॉट बी डेली बट रेगुलर होना चाहिए. मीन्स चलती रहनी चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए वो वर्क. जैसे कि एग्जांपल बोल सकते हैं, इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ वॉच का एग्जांपल है. अगर एक पर्सन, जैसे मैं ले लेता हूँ, मेरे पास वॉच है, अगर मैं वॉच वो बेच रहा हूँ, मेरे किसी फ्रेंड को बेच रहा हूँ, मेरे को पसंद नहीं आई वो, या मैं बेच रहा हूँ, एक बार मैंने बेच दी उसको, तो दिस विल नॉट कंसिडर्ड एज ए बिजनेस. व्हाट, व्हाई, बिकॉज दिस इज नॉट द रेगुलर एक्टिविटी, क्योंकि मैंने तो वो एक बार ही करी है. दूसरी अगर होता है तो अपन, जैसे कि अगर मैं स्टॉक रख रहा हूँ, या मैं अगर मेरी शॉप है जिसमें सब वॉचेस है, अगर मैं कंज्यूमर्स को बेच रहा हूँ, कस्टमर्स को बेच रहा हूँ मैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो बिजनेस कहलाएगा, क्योंकि वो रेगुलर एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे बैठा हूँ और मैं वहाँ शॉप पे बेच रहा हूँ कस्टमर्स को. देन फोर्थ वन इज़ द प्रॉफिट मोटिव. क्या होता है, जो बिजनेस है, बिजनेस का मेन मोटिव ही प्रॉफिट अर्निंग होता है, क्योंकि अगर बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है, if the business is not considering, if the business is not getting the profit, then it will be go in the loss, और वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है वो बिजनेस. ठीक है, ह्यूमन बींग्स की मेन मोटिव ही अर्निंग प्रॉफिट होता है. ठीक है, मेकिंग मनी यूज हो जाता है. लास्ट में आता है अनसर्टेनिटीज़ और रिस्क. जो बिजनेस होता है, बिजनेस विदाउट रिस्क, देयर इज़ नथिंग विदाउट बिजनेस. ऑफ लॉस, जैसे कि रिस्क जो होता है, जैसे कि अगर अपन फायर बोल सकते हैं, अपनी कंपनी में आग लग जाए या किसी प्रकार का लॉस हो जाए, तो वो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ कहलाती है. वो मेन चीज़ होता है, उसके अंदर रिस्क होता है हमेशा. अगर कोई बिजनेसमैन प्लानिंग कर रहा है, या मैनेजर जो होता है अपना,
वो प्लानिंग कर रहा है और अगर वो प्लानिंग पर डेफॉल्ट हो गई प्लानिंग, अगर वो प्लानिंग नहीं चली तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा। डिग्री कोई सी भी कुछ जैसे एग्जांपल हो जाए ऑन चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर चेंज हो गया कुछ कॉम्पिटिशन्स, मतलब जो अपना कॉम्पिटिटर है उसके अंदर कुछ चेंज हो गया, फायर की वजह से अपने कंपनी में आग लग गई है, थेफ्ट ने चोरी कर लिया, नेचुरल कैलेमिटीज मतलब सुनामी वगैरह भूकंप वगैरह आ गया, तो उसके लिए वो ये सभी क्या होते हैं, रिस्क होते ही हैं बिजनेस के अंदर। So these were the types of business. These were the characteristics of business. Now we will talk about what objectives of business. What is the objective of business? So there is common belief that making money is the only objective of business. Yeah, making profit is the main objective of what business. जो एवरी बिजनेस होता है उसको मस्ट अर्न प्रॉफिट, मतलब उसको प्रॉफिट अर्न करना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है तो दैट विल बी गो इन लॉस, और वो ज़्यादा दिन तक सेक्रीफाइस नहीं कर सकता है, वो मार्केट को कॉम्पीट नहीं कर सकता है ज़्यादा दिन। वाई? क्योंकि वो अर्न प्रॉफिट तो अर्न कर ही नहीं रहा है। अगर वो बिजनेसमैन है, वो सैलरी, अगर उनके पास स्टाफ है, वर्कर है, अगर वो सैलरी वगैरह पेमेंट वगैरह दे रहे हैं, उनको किसी को दे रहे हैं, जो स्टाफ है उनको वेजेस सैलरी वगैरह वेजेस दे रहे हैं, तो कब तक देगा वो लॉस में जाएगा। जैसे कि अभी कोरोना काल में हो रहा था कि जो बिजनेसमैन था वो क्या कर रहा था, वो दे रहा था, वो बिजनेसमैन था या जो स्कूल वाले थे, जो भी थे, हॉस्पिटल वाले थे, वो क्या सैलरी दे रहे थे। वहाँ पे दे विल कम्पीट द मार्केट। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट जो है वो प्रॉफिट गेन कर लेंगे। बट जो कंपनी कभी प्रॉफिट गेन ही नहीं कर पाएगी, वो लॉस में ही जा रही है, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। ये ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का मेन मोटिव। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। Implements of policies and programs requires an organization in which people work at one body for a common object। मतलब एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए वो वर्क करते हैं। क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब कॉमन गोल होता है किसका? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक कंपनी होती है, उसके अंदर क्या कॉमन गोल होता है, किसी का भी मेन मोटिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट होता है। वो कंपनी का गोल मैनेजर डिसाइड करता है, या वो जो टॉप लेवल होता है वो डिसाइड करता है, वो कैसे कॉम्पीट करेगा मार्केट को, वो उसमें होता है। ठीक है, ये हो गया ह्यूमन रिलेशन, सोशल रिलेशंस। ऑर्गेनाइजेशन डील्स मैनली विद ह्यूमन रिलेशंस, मतलब ह्यूमन की रिलेशन जो होती है, एंड सोशल प्रॉब्लम्स, जो सोशल प्रॉब्लम्स होती है वो सब उसमें कहलाती है ऑर्गेनाइजेशन। द टर्म ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट्स। तो अपन ने अब मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ लिया है। ना वी विल टॉक अबाउट व्हाट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि जो होता है वो दो टाइप में एज ए प्रोसेस। सो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? वो डायनामिक प्रोसेस होती है, या ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डायनामिक प्रोसेस होती है, एंड मैनेजरल एक्टिविटी या मैनेजरल एक्टिविटी होती है, विच वो क्या करती है? विच इज़ नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग व्हाट विच इज़ नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग फैक्टर टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स। मतलब कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए वो यूज़ होती है। अब जैसे अकॉर्डिंग टू एलन, साइंटिस्ट हैं, उसके द्वारा क्या डेफिनेशन दी गई है इसकी ऑर्गेनाइजेशन की? ऑर्गेनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो वर्क को आइडेंटिफाई करना, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करना, मतलब आइडेंटिफाई करता है वर्क को, और वो ग्रुप में बांट देता है वर्क को, और उनकी जो अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो भी बताता है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, अगर टॉप लेवल का जैसे कोई हेड है, मतलब डायरेक्टर है, तो उसकी अलग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई मैनेजर है उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है। अगर इफ़ कोई डिपार्टमेंट हेड है उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो है। और अगर कोई सुपरवाइज़र है या लेबर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी हालांकि, बट हाँ कुछ रहेगी कि उसको वर्क बराबर करना है, वो रहेगा। देन सेकंड वन की बात करते हैं अपन, क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, व्हाट डज इट मीन? सो ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप अमंग पोजिशन एंड जॉब विच इज बिल्ड up for the realization of common objective।
मतलब जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है उनका क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट होता है। अरे क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप अमंग पोजीशन टाइम गोल। अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, इफ़ दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दे हैव द सेम गोल। और अगर वो साथ में वर्क कर रहे हैं, एक ही कंपनी में एक ही डिपार्टमेंट में अगर वर्क कर रहे हैं, तो उनके बीच में कम्युनिकेट होगा ही सही। और वो क्या कर लेंगे कि वो उनके बीच में रिलेशन क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन होते हैं, अपनी क्लास में बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, अपन केसेस क्रिएट हुआ, अपन कॉलेज में भी अपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। अब एडमिशन लिया है तो हाँ, अपने सब फ्रेंड बन गए धीरे धीरे, तो अपना कम्युनिकेट हुआ बीच में, तो वो क्या है, वो स्ट्रक्चर रिलेशनशिप हो गया, क्योंकि अपन सब एक ही क्लास में, इसलिए अपने रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। और अकॉर्डिंग टू द कुंटूज एंड डोनेल, ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बाय विच एन एंटरप्राइज इज बाउंड टुगेदर एंड द फ्रेमवर्क इन विच इंडिविजुअल एफर्ट्स इज कोऑर्डिनेट। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन वो होती है, वो रिलेशंस को क्या करती है, बांधती है। एंटरप्राइज जो होती है वो रिलेशंस को बांध देती है, और वो क्या करती है, फ्रेमवर्क वो वर्क करती है किसी के सामने। वर्क तो खुद ही इंडिविजुअली करता है, बट वो कोऑर्डिनेट करता है सबके सामने, वो वर्क करता है, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन बोथ एज अ प्रोसेस और एज ए स्ट्रक्चर इज बोथ इम्पोर्टेंट। विदाउट इट नो मैनेजर कैन डू। मतलब अगर मैनेजर है अपने पास और अगर ये दोनों चीज़ें वो नहीं कर रहा है, तो ही कांट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों चीज़ें के द्वारा ही होएगा। देन अब बात करते हैं अपन के वर्ड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी हैव अंडरस्टूड द टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी विल अंडरस्टूड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज द टोटल एफर्ट्स आर डिवाइडेड। टोटल एफर्ट्स होते हैं डिवाइड होते हैं इन ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ असाइंड उनको टास्क उनका स्पेशलाइज्ड। जैसे वो स्पेशलाइज्ड अगर है कुछ काम में, अगर कोई बोल सकते हैं अपन कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई डिपार्टमेंट कुछ दूसरा वर्क करता है, तो वो सबके उनकी स्पेशलाइज्ड स्किल्स के द्वारा, उनकी स्किल्स जो है, कोई टाइपिंग में फास्ट है या कोई सर्चिंग में फास्ट है, जो भी हो, वो उसके द्वारा उनके लेबल्स को डिवाइड कर देंगे। वैसे लेबर्स की बात हो रही है यहाँ पे। सो जो लेबर्स होते हैं वो उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको पर्सनस के द्वारा, क्वालिफाइड पर्सनस को भेज सकते हैं, अप्रोप्रिएट भेज सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेशन। हैविंग डिवाइडेड अप द वर्क फॉर पर्पज रियलाइजेशन कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव इज because necessary to link up the or integrate common goals or objectives. It becomes necessary for the for division functions और activities। मतलब दूसरी एक्टिविटीज़ करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो देन वी कांट डू नथिंग। ना मैनेजर कुछ कर सकता है, ना अपन कुछ कर सकते हैं। अगर जब तक अपने बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जैसे कि वही जो एग्जांपल मैंने आपको पीछे दिया था, जब तक अगर अपन स्टूडेंट है और अपन अपने फ्रेंड से फ्रेंडशिप वगैरह नहीं करेंगे या अपन उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तो ना अपन खुद अकेले कुछ कर सकते हैं, ना वो अपने ना कुछ कर सकते हैं। देयर विल बी द कोऑर्डिनेशन। देन थर्ड वन इज द accomplishment of common goal. An organization has no meaning unless it is built around certain clear cut goal. या जैसे कि अपनी लाइफ में भी अपने पास गोल है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो किस चीज़ पे वर्क करेगा। अगर उसके पास गोल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो वो वर्क कैसे करेगा। देन फोर्थ वन इज व्हाट अथॉरिटी responsibilities structure. As organization structure consists of various positions arranged in the hierarchy with a clear definition of authority and responsibility associated with each of these positions. Means जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या करता है कि कंसिस्ट करता है जो उनकी हायरार्की अथॉरिटी, मतलब उनकी जो अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उनको डिवाइड करता है, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड कर देता है। मैनेजर की मैंने बता चुका हूँ कि मैनेजर की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है,
सुपरवाइजर की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेबर की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उनके वर्क के हिसाब से उनको डिवाइड हो जाती है. देन लास्ट वन इज द फिफ्थ पॉइंट इज कम्युनिकेशन. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टेन वेल एस्टेब्लिश्ड लाइन्स एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब सभी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पास वेल एस्टेब्लिश मतलब अच्छी खासी मेथड्स या कम्युनिकेशन उनके पास होता है. उनका विज़न होता है सामने, फ्यूचर विज़न होता है कि हमको कैसे क्या करना है, वो चीज़ें देखे उधर दिस थिंग. An efficient system of communication ensures proper understanding between different persons working in an organization. मतलब जो efficient system है ऑर्गेनाइजेशन का, अगर कुछ होना चाहिए तो वो होता है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पर्सन्स वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम दोनों साथ में क्या करना चाहते हैं. दिस शुड बी देयर, द कम्युनिकेशन शुड बी देयर. सो दिस वर द फर्स्ट, दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस organization communication. This is the first lecture, this was the first lecture, so we will study this. So thank you all. So don't forget to like, share and subscribe to my channel if you are new, and please support me because I am also a student like you. Thank you so much.